Hello, viewers, listeners, and the student, particularly of third part and fifth. Here today we are going to start again Land Reforms Act 1950, in which some important terms have been used, and these terms are new for the students also, and they should know the meaning as well as the definition of the words so that they they feel no difficulty in understanding the subject matter and the words, meaning of the words used in this act. Now, some of the words are here as intermediary, second is tenure, third is tenure holder, and fourth is khas possession, and lastly compensation officer. These terms are very important so far this act is concerned, since their meaning must be known by us so that we should not get any difficulty in understanding the subject matter. Now, more than once we have discussed about intermediary. Now, who is intermediary? In BT Act, means Bihar Tenancy Act, the intermediaries were called as landlord, proprietors, tenure holders, etc. But in the meantime, Land Reforms Act, they are called intermediary. So we have to remember us the exact meaning of intermediary means madhyavarti in Hindi. If we say in Hindi, the meaning मध्यवर्ती का अर्थ वह व्यक्ति जो 3 टायर सिस्टम में इन्वॉल्व था और वह एक सेतु का काम, एक ब्रिज का काम कर रहा था बिटवीन British government and the persons called Rayat and some other person who holds some different kind of tenure. Now the word tenure is very important so far its meaning is concerned. अर्थात tenure and its Hindi meaning is heath, and the another meaning of heath is interest. So, if we compare tenure and with Rayat and tenure with tenure holder, then the word tenure has 2 different meanings. If we compare with Rayat, the meaning of tenure is that the Rayat has interest in cultivating the land, and that land must be cultivated by own or by the support of the family members or some laborers or laborers from different cost, and so his interest is to cultivate the land. But in case of tenure or tenure holder also holds the land, but his interest, his object is different. He only can collect the rent and deposit the rent to the British government, his agent collector. And by the way, by doing this act,
between the Rayat or tenure holder and British government. It is called in another way out of this act, that is commission agent, and this type of persons were called intermediary or madhyavarti. In this act, the madhyavarti is defined in Hindi as कोई व्यक्ति जिसने किसी जायदाद या टेन्योर को या तो अपने निजी अधिकार से या न्यासी के रूप में मालिक की हैसियत से रखा है, उसे मध्यवर्ती कहा जाएगा। इस अधिनियम में जो परिभाषा दी गई है इसी से मिलता जुलता है। वह है कि इस अधिनियम में मध्यवर्ती शब्द को परिभाषित किया गया है कि किसी जायदाद या टेन्योर के संबंध में मध्यवर्ती का तात्पर्य एक प्रोप्राइटर, टेन्योर होल्डर, उप टेन्योर होल्डर और न्यासधारी से होता है। इस तरह एक व्यक्ति टेन्योर होल्डर भी हो सकता है, न्यासधारी भी हो सकता है और प्रोप्राइटर भी हो सकता है। तो इस प्रकार मध्यवर्ती, जो हम शुरू में ही कहा कि वह एक मीडिएटर का और कमीशन एजेंट का काम करता था, जिससे कि रैयत या टेन्योर होल्डर से वह लगान वसूल कर ब्रिटिश गवर्नमेंट को देती थी और उसके बदले में उसे या तो कमीशन मिलता था या अन्य कोई सुख सुविधा जो उन्होंने उस ब्रिटिश सरकार के साथ संविदा किया होगा वह मिलता था। खैर, अब रहा बात टेन्योर का, जिसका शुरू में मैंने जिक्र किया। टेन्योर शब्द की परिभाषा भूमि सुधार अधिनियम की धारा 2Q के अंतर्गत इस प्रकार दी गई है। टेन्योर का तात्पर्य टेन्योर होल्डर का हित और उसमें शामिल है कोई घटवाली हित। अब यहाँ घटवाली शब्द का प्रयोग किया गया। घटवाली का अर्थ है घटवाल के रूप में काम करना। घटवाल का अर्थ है, हमारे बिहार में या इस देश में बहुत सारी नदियाँ हैं। अब तो बहुत सारे पुल बन गए हैं, लेकिन जब पुल नहीं बना था, पुल की कमी थी, तो लोग इस पार से उस पार नाव से जाते थे। तो नाव से जाते आते थे। वहाँ ब्रिटिश सरकार ने इसके लिए एक व्यक्ति या परिवार को उसका ठेका देता था साल भर का, कि अमुक व्यक्ति या परिवार उस नाव को चलाएगा और उसके बदले में उसे कमीशन दिया जाएगा। बाद में स्थिति यह हो गई कि साल भर का नीलामी किया जाता था सर्टेन रुपए के अंतर्गत, और वह नीलामी राइट्स जो है, ऑक्शनल राइट्स, उस व्यक्ति को दिया जाता जो बोली अधिक लगाता था। इस प्रकार उस साल भर का ठेका ले लिया और नदी में नाव का चालन करवाते थे और उससे लोगों से उसका नाव पर आने जाने का पैसा वसूल करते थे। अर्थात यह काम खेती करने के अलावा है। इसलिए जो व्यक्ति इसको चलाता है वह उसका इंटरेस्ट कहलाता है, और वह इंटरेस्ट है नाव चलाकर उससे पैसा प्राप्त करना। यही बात यहाँ लिखा है, कोई घटवाली हित। दूसरा है किसी व्यक्ति के निर्वाह के लिए उत्पन्न हित। दोनों बात एक दूसरे से सटा हुआ है और दोनों आवश्यक है। वह व्यक्ति जो सालों भर नदी में नाव का संचालन करवाता है,
उससे उसका जिंदगी गुजर बसर चलता है, इसलिए उसके निर्वाह का वह हित हुआ। इस प्रकार हित दोनों के साथ होता है, अर्थात एक रैयत के साथ भी होता है, एक टेन्योर होल्डर के साथ भी होता है। लेकिन रैयत के साथ होता है तो वह खेती करना होता है, खेती से जीवन का निर्वाह करते हैं, और खेती में जो उपज होता है उससे ब्रिटिश सरकार को मध्यवर्ती के द्वारा दिया करते थे। तो ये हो गई टेन्योर की बात। तो हमने देखा इंटरमीडिएरी अर्थात मध्यवर्ती का परिभाषा, टेन्योर का परिभाषा। अब देखते हैं कि बीटी एक्ट की तरह लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के अंतर्गत टेन्योर होल्डर का क्या तात्पर्य है और परिभाषा क्या है। तो गौर से देखिएगा, टेन्योर होल्डर की परिभाषा बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 2R में दी गई है। इसके अंतर्गत टेन्योर होल्डर का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने प्रोप्राइटर या अन्य टेन्योर होल्डर से लगान वसूल करने का या खेती के उद्देश्य से कृषक को स्थापित करने के लिए भूमि को धारण करने का अधिकार प्राप्त किया गया है और उसमें शामिल है। पॉइंट नंबर 1, उन व्यक्तियों के हित उत्तराधिकारी जिन्होंने कि ऐसे अधिकार को प्राप्त किया है। इसका तात्पर्य यह हो गया कि एक तो वह व्यक्ति जो टेन्योर होल्डर का अधिकार प्राप्त करता है, और वह यदि मर जाता है तो उसका जो सक्सेसर होगा उसे भी वह अधिकार प्राप्त होगा, अर्थात हित प्राप्त होगा। ऐसे लोगों को ही हित उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है। पॉइंट नंबर B या 2, न्यासी के रूप में ऐसे अधिकार को धारण करने वाला व्यक्ति। तीसरा, किसी व्यक्ति के निर्वाह के लिए उत्पन्न की गई टेन्योर का धारक। और पॉइंट नंबर 4, घटवाल और घटवाल का हित उत्तराधिकारी, जो भी हमने आपको बताया था, घटवाली शब्द के अंतर्गत। और लास्ट पॉइंट है, जहां टेन्योर होल्डर नाबालिग है या विकृत चित्त का या जड़ बुद्धि का है, उसका संरक्षक, कमेटी या कानूनी संरक्षण इत्यादि ऐसे लोग को टेन्योर होल्डर के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार टेन्योर होल्डर भी टीनेंट कहलाते हैं और रैयत भी टीनेंट कहलाते हैं। दोनों ही के दोनों टीनेंट के अंतर्गत आते हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। जहाँ एक टेन्योर होल्डर का हित है लगान वसूलना, चाहे वह घटवाल से हो या हाट बाजार से हो या अन्य तरीके से हो, और दूसरा कि यदि वह रैयत को भी बसाता है तो उससे लगान वसूल कर अपना हित को प्रदर्शित करता है। अर्थात कहा जाए तो उसका अधिकार क्षेत्र हित का है और हित दोनों तरह से उत्पन्न हो सकता है। अब ये एक शब्दावली है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं खास पोजीशन, हिंदी में भी खास पोजीशन। खास पोजीशन मतलब आप जान ही रहे हैं कि पर्टिकुलर पोजीशन या सर्टेन पोजीशन, खास दखल जिसको हिंदी में कहते हैं। तो इसको समझने के पहले हम ऐसा समझें कि भूमि चाहे वह भूस्वामी दे, चाहे स्वामी दे, चाहे भूधारक दे, अर्थात कोई भी मध्यवर्ती देते हैं भूमि, तो ऐसे भूमि उनके पास रह जाता है या रखना चाहते हैं या रख लेते हैं,
जिन्हें हम प्राइवेट लैंड भी अंग्रेजी में कह सकते हैं, वह ये इसलिए प्राइवेट लैंड कहलाता है कि वे अपने उस जब भूमि को दखल किए हुए हैं, अर्थात अपने पोजीशन में रखे हुए हैं, और उनका जोतावाद या खेती बाड़ी या उपज अपने मजदूरों को रखकर या भाड़े पर मजदूरों को बुलाकर या अन्य विधि से अपने द्वारा करते हैं, और वह तब तक वो भूमि उनके पास बना रहता है जब तक वे चाहें। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जो भूमि उनके पास होता है उसे हम खास पोजीशन का संज्ञा देते हैं। बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 2K में खास दखल को परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार जहाँ कहीं भी खेती या बागवानी के लिए आने वाली भूमि के प्रोप्राइटर या टेन्योर होल्डर के दखल के संबंध में खास दखल शब्द का प्रयोग हुआ है, वहाँ उसका तात्पर्य ऐसे भूमि पर प्रोप्राइटर या टेन्योर होल्डर द्वारा इस पर स्वयं या अपने नौकरों द्वारा या मजदूरों द्वारा या भाड़े पर लिए गए श्रम के द्वारा रखे गए कब्जे से है। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि खास शब्द इस्तेमाल किया और दखल भी इस्तेमाल किया। इसका मतलब है कि ऐसे भूमि जो सार्वजनिक नहीं बनाया गया, किसी रैयत को या टेन्योर होल्डर को नहीं दिया गया, बल्कि वे अपने द्वारा यूज करके उसको अपने पास बनाए रखा और उसका हित या इंटरेस्ट अपने पास रखा। इस प्रकार से खास पोजीशन का यह तात्पर्य हुआ। अब अंत में एक और शब्दावली है जो थोड़े सा का है, उसको बता ही देते हैं। प्रतिकर अधिकारी या कंपनसेशन ऑफिसर। प्रतिकर अधिकारी से तात्पर्य उस अधिकारी से है जो अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत उन मध्यवर्तियों को प्रतिकर निर्धारण करने के लिए नियुक्त किया जाता है या नियुक्त किया गया हो। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो अधिकारी के रूप में तो होते ही हैं, लेकिन वे और उनका काम यह है कि वे मध्यवर्ती के या अन्य किसी को प्रतिकर देने की जरूरत पड़ती है सरकार के द्वारा, तो उसके निर्धारण के लिए वे नियुक्त किए जाते हैं और उनके द्वारा प्रतिकर का निर्धारण किया जाता है, जिससे कि सरकार को उन्हें उचित प्रतिकर दिया जा सके। धन्यवाद।